Hi everyone, welcome you all. In last lecture, we will start a new unit which is based upon the Laplace transformation, and we discuss the meaning of transformation, the definition of Laplace transformation, and some standard result for evaluating a problem of Laplace transformation. We already discussed the proof of the results, and in this lecture we will use that result for the solution of problems. So we just recall what are the results that we discussed in last lecture. The first result is Laplace of 1 is equal to 1 upon s. Second is Laplace of t raised to the power n is equal to n factorial upon s raised to the power n plus 1. Now Laplace of e to the power at is equal to 1 upon s minus a. Here the condition is s is greater than a. Why is s is greater than a? Why we consider s is greater than a? S is greater than a because if s is equal to a, this value is 0, means we get 1 upon 0, that is infinity. And if s is less than a, then this value is negative. And we know that the Laplace is nothing but the improper integral. So the term inside the integral may be diverges when its value is less than a. So therefore we strictly take s is greater than a. Next result is Laplace of cos hat s upon s square minus a square. If there is a cos hat, then the result becomes s upon s square plus a square. And the Laplace of sin hat is a upon s square minus a square. If there is a sin hat, the result is a upon s square plus a square. So these are the some result which we will discuss in last lecture. Now in this lecture we will use this result for solution of a different problem of Laplace transformation. So to solve the problems of Laplace transformation, we either use the result or we use a definition which is discussed in earlier lecture. So let's start with the example. So first example is find the Laplace transformation of So first example is find the Laplace transformation of f of t, where f of t is given by this value. So here f of t has a two different value, means the function is discontinuous here, and we have to use a two different value for the function to find the Laplace transformation. So let's start to solve the given problem. So this is the problem. This type of problem is always solved by using a definition of Laplace transformation. इस टाइप के जो भी प्रॉब्लम रहेंगे ऐसे डिसकंटिन्यूअस नंबर ऑफ फंक्शन, मतलब फंक्शन की वैल्यू अलग अलग रेंज में अलग अलग वैल्यू अगर होगी तो ये सभी प्रॉब्लम हम डेफिनेशन से सॉल्व कर सकते हैं. तो हम डेफिनेशन यूज करके ये प्रॉब्लम ट्राई करेंगे सॉल्व करना. तो बाय यूजिंग डेफिनेशन, सो वी नो दैट what is the definition of Laplace transformation? Definition means the formula which is used to find the Laplace transformation. So formula is Laplace of f of t is equal to integration 0 to infinity e to the power minus st f of t dt. So this is the formula to find the Laplace transformation. Now when there is only one value of f of t, then we directly put the value of f of t here and we have to solve this integral, जैसे हमने रिजल्ट में किया था रिजल्ट प्रूव करने के लिए. लेकिन यहाँ पे f of t की वैल्यू क्या है, अलग अलग है. लेकिन f of t की वैल्यू अलग अलग है तो उसकी रेंज भी अलग है. तो आपके पास जो रेंज है वो हमारे पास जो रेंज है वो है 0 to infinity.
और बीच में ये एक पॉइंट है के, क्योंकि ये वैल्यूज कब है, जब t 0 और k के बीच में रहेगा, और ये वैल्यू 1 तब होगी जब t k से ग्रेटर होगा। तो k कहाँ पर आएगा, k इज अ फाइनाइट नंबर, तो इसमें बीच में कहीं पर k आएगा। कई बार भी हो सकता है सेंटर में हो सकता है, इधर के साइड में हो सकता है, इधर के साइड में होता है, लेकिन ये तो फिक्स है कि k जो रहेगा वो 0 टू इन्फिनिटी के बीच में रहेगा। तो अगर आपको 0 टू इन्फिनिटी जाना है तो आप ऐसे भी जा सकते हैं, 0 टू k पहले जाएंगे हम और k टू इन्फिनिटी जाएंगे। मतलब हमको क्या करना है, यहाँ पर इस इंटीग्रल को स्प्लिट करना है। तो इस इंटीग्रल को हम दो पार्ट में स्प्लिट करते हैं। पहला जो पार्ट रहेगा वो रहेगा 0 टू k, तो पहली लिमिट होगी हमारी 0 टू k, इंटीग्रेशन रहेगा हमारा e टू द पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी, और दूसरा जो रीजन रहेगा वो रहेगा हमारा k और t इज ग्रेटर देन k, मतलब कहाँ तक है हमारी फाइनल रेंज, इन्फिनिटी। तो k इक्वल टू रहेगा t इक्वल टू रहेगा k टू इन्फिनिटी, और यहाँ पर भी इंटीग्रेशन के अंदर क्या रहेगा e टू द पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी। तो पहले स्टेप में क्या करना है, अगर कहीं पर डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है आपके पास तो आपको इंटीग्रल को स्प्लिट करना है, और स्प्लिट करने के बाद अगर आपको देखना है कि हमारा प्रॉब्लम करेक्ट हुआ तो आपको क्या देखना है, यहाँ पे लोअर लिमिट और दूसरे इंटीग्रल की अपर लिमिट, ये आपको जो आपकी रिजल्टेंट है वो चाहिए। मतलब यहाँ पे 0 टू इन्फिनिटी है, ये 0 टू इन्फिनिटी चाहिए मुझे, और जो बचे हुए लिमिट्स है वो दोनों सेम चाहिए। तो ये दोनों सेम है, मतलब सेम सेम होके कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो हमको 0 टू इन्फिनिटी मिलेगा, और इंटीग्रल के अंदर की जो टर्म है इंटीग्रेंड वो एज इट इज। अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसकी वैल्यू पुट करेंगे। तो पहला इंटीग्रल है 0 टू k, यहाँ पर है e टू द पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी। एफ ऑफ टी की वैल्यू कौन सी है, यहाँ पर t बाई के, तो यहाँ पे हम पुट करेंगे t बाई के, और यहाँ पे हो गया डी टी प्लस सेकेंड इंटीग्रल कौन सा है, k टू इन्फिनिटी है लिमिट्स, e टू द पावर माइनस एस टी यहाँ पर भी है, और एफ ऑफ टी की जो वैल्यू है वो 1 है, ये होगी 1 इंटू डी टी। अभी इसको सॉल्व करेंगे हम। तो यहाँ पे जो इंटीग्रेशन है वो इंटीग्रेशन है विद रिस्पेक्ट टू टी, यहाँ पे जो इंटीग्रेशन है वो है विद रिस्पेक्ट टू टी। तो इस इंटीग्रेशन का जो वेरिएबल है वो है टी, तो टी छोड़कर जो भी टर्म रहेगी वो क्या रहेगी, कांस्टेंट। तो यहाँ पर 1 अपॉन के जो है वो कांस्टेंट है, तो इसको हम इंटीग्रेशन के बाहर ले लेंगे 1 अपॉन के, तो इंटीग्रल बचेगा 0 टू के टी इंटू ई टू द पावर माइनस एस टी डी टी, और सेकंड इंटीग्रल जो रहेगा वो रहेगा हमारा k टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस एस टी इंटू 1 हो जाएगा हमारा e टू द पावर माइनस एस टी, और ये आएगा dt। तो ये हमको इंटीग्रल मिल गया। अभी यहाँ पे क्या करना है, हमको इस इंटीग्रेशन को हमको सॉल्व भी करना है। तो सॉल्व करने के लिए अगर आपका कोई फार्मूला डायरेक्ट यूज होता है तो डायरेक्ट यूज करो, अगर डायरेक्ट यूज नहीं होता है तो हम कोई दूसरा मेथड यूज करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर देखते हैं तो आपके पास एक ही टर्म है e टू द पावर माइनस एस टी। तो यहाँ पे अगर मैं इसको ट्राई करता हूँ तो मेरे पास एक फार्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर ax dx। अगर इस टाइप की टर्म है तो इसका इंटीग्रेशन हम इजीली निकाल सकते हैं, e टू द पावर ax का इंटीग्रेशन e टू द पावर x ही होगा, सिर्फ यहाँ पे क्या आएगा x का कोएफिशिएंट जो डिनोमिनेटर में रहेगा। तो ये फार्मूला है, तो ये यहाँ पे सेकंड में तो हम यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर फर्स्ट ऑब्जर्व करेंगे तो फर्स्ट इंटीग्रेशन में यहाँ पे दो टर्म का प्रोडक्ट है, और दो टर्म का अगर प्रोडक्ट है तो आपको हमेशा क्या यूज करना है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ओके, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के लिए भी दो फार्मूले है। एक फार्मूला जो हमने 12th में यूज किया था, वो फार्मूला कौन सा था जो 12th में हम यूज करते थे, वो फार्मूला इस टाइप का है u v dx। अगर दो टर्म का प्रोडक्ट है और इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x है तो इसका इंटीग्रेशन होता है u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव दैट इज du बाय dx इंटीग्रेशन ऑफ v dx और dx। ये एक फार्मूला है हमारा। और एक फार्मूला दूसरा है कि जो हमने लास्ट ईयर में 4 ईयर सीरीज के लिए यूज किया था। वो फार्मूला कैसा था कि फर्स्ट टर्म को आपको एज इट इज रखना है, सेकंड का आपको इंटीग्रेशन लेना है, फिर फर्स्ट का डेरिवेटिव लेना है, सेकंड का डबल इंटीग्रेशन लेना है, फिर फर्स्ट का डबल डेरिवेटिव लेना है, इसका अगेन इंटीग्रेशन लेना है अप टू सो ऑन। मतलब सिंपली इसमें क्या करना है, फर्स्ट टर्म एज इट इज, दूसरे का इंटीग्रेशन, फिर यहाँ पे जो पहली टर्म है इसका डेरिवेटिव, इसका अगेन इंटीग्रेशन, फिर यहाँ पे जो टर्म है इसका डेरिवेटिव, फिर इसका इंटीग्रेशन। कब तक चलना है, जब तक कोई ना कोई वैल्यू वहाँ पे जीरो नहीं होती है। और यहाँ पे जो साइन है ना वो अल्टरनेट है, मतलब प्लस माइनस। तो दोनों में से आप कोई भी रिजल्ट यहाँ पे यूज कर सकते हैं इंटीग्रेशन पर पार्ट्स के लिए। फ्रिक्वेंटली मैं ये यूज करूंगा,
ये यूज करने से क्या होगा, प्रॉब्लम थोड़ा इजी हो जाएगा। और अगर आपको ये नहीं मालूम तो आप 12 का रिजल्ट भी जो है वो भी यूज कर सकते हैं। दोनों इसमें आंसर जो रहेगा हमारा आंसर सेम ही रहेगा। तो हम ट्राई करेंगे ये रिजल्ट यूज करके और देखेंगे कि इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या आता है। बाद में एक बार और ध्यान में रखना है आपको, फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म अगर इंटीग्रेशन हम पार्ट्स करेंगे, अगर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करते हैं आप, तो आपको ऑर्डर ए ध्यान में रखना है, LIAT। ये ऑर्डर किसकी है, ये ऑर्डर इसकी है कि इंटीग्रेशन के अंदर अगर दो टर्म का प्रोडक्ट है तो उसमें से पहली टर्म कौन सी रहेगी। जैसे कि ये टर्म अगर आप देखते हैं एक्सपोनेंशियल है, तो एक्सपोनेंशियल कहाँ पे है, लास्ट में है, तो ये सेकंड टर्म ही रहेगी। और इसको बोलते हैं हम ऑलजेब्रिक टर्म, तो इसके पहले ऑलजेब्रिक इसके पहले आती है, तो ऑलजेब्रिक इज द फर्स्ट टर्म और ये सेकंड टर्म। मतलब ये अगर हम कंसीडर कर देंगे तो ये आएगा हमारी फर्स्ट टर्म और ये आएगी हमारी सेकंड टर्म। तो अभी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएंगे हम और देखेंगे कि इसका सॉल्यूशन कितना आता है। ठीक है, सो विच इज इक्वल टू 1/k एज इट इज इन ब्रैकेट। अभी यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का रिजल्ट क्या है, फर्स्ट टर्म एज इट इज, तो यहाँ पे मैंने फर्स्ट टर्म लिख ली। इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, तो सेकंड का इंटीग्रेशन यही फार्मूला लगेगा यहाँ पर, तो e टू द पावर माइनस एस टी का इंटीग्रेशन क्या आएगा, e टू द पावर माइनस एस टी अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ t इज माइनस एस, माइनस पहले टर्म का डेरिवेटिव यहाँ पे t है, तो t का डेरिवेटिव क्या आएगा, 1 आएगा। फिर इसका इंटीग्रेशन क्या रहेगा, e टू द पावर माइनस एस टी का इंटीग्रेशन e टू द पावर माइनस एस टी और माइनस एस आएगा, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी एक माइनस एस है, तो माइनस माइनस प्लस और एस इंटू एस हो जाएगा ये एस स्क्वायर। इसके बाद आएगा प्लस, प्लस आने के बाद अभी इसका डेरिवेटिव आएगा 1 का, लेकिन 1 का डेरिवेटिव कितना होता, 0, और 0 इंटू एनीथिंग कितना होगा, 0। फिर उसके बाद 0 का डेरिवेटिव कितना होगा, 0। मतलब जब भी ये टर्म 0 हो जाएगी ना उसके बाद आपको सॉल्व करना नहीं है, तो ये 0 हो गई, तो यहाँ पे ये टर्म एंड हो गई। और इसकी लिमिट कितनी है, 0 to k, इसकी लिमिट भी पुट कर देंगे हम, प्लस अभी सेकंड टर्म बाकी है, सेकंड टर्म अगेन है e टू द पावर माइनस एस टी, तो अगेन e टू द पावर माइनस एस टी का इंटीग्रेशन क्या रहेगा, e टू द पावर माइनस एस टी अपॉन माइनस एस, और इसकी लिमिट कौन सी है, k टू इन्फिनिटी, विच इज इक्वल टू, अभी यहाँ पे हमको क्या करना है, सिर्फ लिमिट पुट करना है, तो 1/k एज इट इज इनटू इंटीग्रेशन। लिमिट कैसे पुट करते हैं हम, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो यहाँ पे पहले वैल्यूज में अपर लिमिट कौन सी है, k, और k किसकी लिमिट से, वो लिमिट से t की, जो वेरिएबल होता है इंटीग्रेशन का उसकी लिमिट्स होती है। तो आपको सिर्फ क्या करना है, अपर लिमिट के लिए t को k से रिप्लेस करना है फॉर अपर लिमिट, और t को 0 से रिप्लेस करना है फॉर लोअर लिमिट। और वैल्यू कैसे निकालते हैं हम, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ऐसे वैल्यूज निकालते हैं यहाँ पे। तो हम देखेंगे अभी क्या मिलेगा, तो अपर लिमिट है k, तो यहाँ पे जितने भी t है उन सभी को आप k से रिप्लेस कर दो, तो पहली टर्म है k, तो ये आ गया k, यहाँ पे माइनस एस एज इट इज आएगा, तो ये माइनस एस आएगा, फिर e टू द पावर माइनस एस, t की जगह पे अगेन क्या आएगा, k आएगा, फिर माइनस 1/s स्क्वायर एज इट इज आएगा, 1/s स्क्वायर, फिर e टू द पावर ये क्या आएगा अगेन माइनस एस इंटू k, ये तो 0 है, इसको छोड़ दो। तो यहाँ पे हमने अपर लिमिट पुट कर दी, तो अपर लिमिट में t को हमने रिप्लेस कर दिया k से, माइनस आएगी लोअर लिमिट, लोअर लिमिट कितना है, 0, तो जितने भी t है वहां पे आपको 0 रखना है। तो पहले अगर पहले टर्म में मैं t की जगह पे 0 रखता हूँ तो यहाँ पे 0 बन जाएगा, और 0 इंटू एनीथिंग इज 0, तो पहले टर्म मुझे मिल जाएगी 0। बाद में सेकेंड टर्म आएगी माइनस, ये आएगा 1/s स्क्वायर, 1/s स्क्वायर, और e टू द पावर ये हो गया 0, और e टू द पावर 0 कितना होता, 1, तो इसको छोड़ देंगे हम, ये हो गया अपर माइनस लोअर। बाद में सेकेंड टर्म में देखेंगे, तो सेकेंड टर्म में जो माइनस एस है इसको हम बाहर ले सकते हैं, तो ये माइनस एस को मैं इधर ले लेता हूँ, तो ये आ गया माइनस 1/s। ठीक है, अभी अपर लिमिट क्या है, इन्फिनिटी, तो ये वैल्यू हो जाएगी e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी, और लोअर लिमिट क्या है k, तो ये हो जाएगी e टू द पावर माइनस एस के, बराबर है। इसके बाद अभी इसको हम इवेलुएट करेंगे और देखेंगे कि हमारा आंसर क्या मिलेगा हमको। सो विच इज इक्वल टू 1/k, इसको एडजस्ट कर देंगे अभी, ये इसको लिख सकता मैं माइनस k/s इंटू e टू द पावर माइनस एस के, माइनस 1/s
इंटू ई टू द पावर माइनस एस के माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन एस स्क्वायर, ये होगी पहली टर्म, माइनस 1 अपॉन एस इन ब्रैकेट ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी मतलब होता है जीरो, तो जीरो माइनस ई टू द पावर माइनस एस के। अभी इसको हम सॉल्व करेंगे। अभी 1 अपॉन के क्या है, इन सभी को मल्टीप्लाई है, तो इन सभी को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 1 अपॉन के अगर मल्टीप्लाई किया मैंने तो पहले टर्म में ऊपर के है और यहाँ पे नीचे के है, तो के क्या हो जाएगा कैंसिल, तो पहली टर्म मिलेगी आपको माइनस 1 अपॉन एस ई टू द पावर माइनस एस के। सेकेंड टर्म क्या मिलेगी हमको, माइनस 1 अपॉन, यहाँ पे एस है ऑलरेडी और यहाँ से के आएगा ई टू द पावर माइनस एस के, प्लस थर्ड टर्म क्या आएगी 1 अपॉन के इंटू एस स्क्वायर, के इंटू एस स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन एस ई टू द पावर माइनस एस के, ये टर्म मिल जाएगी। अभी ये फर्स्ट और लास्ट टर्म अगर ऑब्जर्व करेंगे आप तो ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो ये हो गई कैंसिल, और ये कैंसिल होने के बाद हमारे आंसर में सिर्फ दो ही टर्म बचे हैं, तो दो टर्म आपको लिखना है। सो विच इज इक्वल टू, तो पॉजिटिव टर्म में पहले लिख देता हूं, सो 1 अपॉन के एस स्क्वायर और यहाँ पे 1 माइनस के एस ई टू द पावर माइनस एस के, ये हो गया हमारा आंसर। अभी इसमें आप देखो कि इसमें कुछ चेंजेस कर सकते हैं क्या, इसमें अगर कुछ चेंजेस आपको आते हैं तो उस हिसाब से हम इसमें थोड़ा ही चेंजेस कर सकते हैं। क्या कर सकेंगे हम, यहाँ पे जो के है यहाँ पे जो टर्म है ना ये 1 अपॉन एस स्क्वायर है, तो यहाँ पे 1 अपॉन एस स्क्वायर आएगा, वो चेंज कर लो थोड़ा, और यहाँ पे भी एस स्क्वायर आएगा, तो यहाँ पर भी क्या आएगा, यहाँ पर भी एस स्क्वायर आएगा, ये थोड़ी करेक्शन है। यहाँ पे एस स्क्वायर था, ये जो टर्म थी एस स्क्वायर, तो मैंने एस लिया था, तो ये दोनों टर्म में देखेंगे आप तो दोनों टर्म में 1 अपॉन के एस स्क्वायर और 1 अपॉन के एस स्क्वायर क्या है, सेम है, तो इसको हम बाहर निकाल सकते हैं। तो 1 अपॉन के एस स्क्वायर को कॉमन ले लिया मैंने, रिमेनिंग टर्म यहाँ पे क्या बचेगा 1 और यहाँ पे बचेगा e टू द पावर माइनस एस के। तो ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया आपका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन एफ ऑफ टी का। ठीक है, तो लास्ट में क्या लिखेंगे फिर हम, सो देयरफॉर लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ऑफ टी, एफ ऑफ टी अभी ऊपर है तो डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है, इसलिए हम इसमें वैल्यू नहीं डालेंगे वहां पर, विच इज इक्वल टू मिलेगा आपका लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी को क्या करते हैं हम एफ ऑफ एस, और हमने देखा था कि लाप्लास इज अ ऑपरेटर विच कन्वर्ट्स अ फंक्शन टी टू एस। तो देखिए आपका ओरिजिनल प्रॉब्लम टी में था और हमको आंसर किसमें मिला, एस में, तो इसका आंसर है हमारा 1 अपॉन के एस स्क्वायर 1 माइनस ए टू द पावर माइनस एस के। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर पहले प्रॉब्लम का। तो अगर आपके पास ऐसा कोई डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है और डिसकंटिन्यूअस फंक्शन अगर आपको सॉल्व करना है तो फंक्शन सॉल्व करने के लिए हमें क्या यूज करना है, हमेशा वी हैव टू यूज अ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन डेफिनेशन। लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की हम क्या करेंगे, डेफिनेशन यूज करेंगे उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। वहां पे एक सेकंड प्रॉब्लम भी है तो उसको ट्राई करेंगे, हम देखते हैं कि उसको सॉल्व कैसे करेंगे। वहां पे जो सेकंड प्रॉब्लम है वहां पे तीन फंक्शन की वैल्यू थर्ड इंटरवल में, तीन टाइप में फंक्शन की वैल्यू, तो इसको देखेंगे सॉल्व करके। ये प्रॉब्लम मैं नीचे ले लेता हूँ सॉल्व करने के लिए, तो यहाँ पे अगर सामने रहेगा तो फिर हमारे लिए बराबर होगा उसको वैल्यूज देखने के लिए। ठीक है, सो नेक्स्ट एग्जांपल इज फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू 1 0 to 1 के बीच में वैल्यूज 1 है, 1 to 2 के बीच में वैल्यूज t है और 2 to इन्फिनिटी के बीच में वैल्यू t स्क्वायर है। तो इसको भी सॉल्व करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, डेफिनेशन यूज करेंगे। तो अगेन वी नो दैट
what we know that Laplace of f of t is equal to integration 0 to infinity e to the power minus st f of t dt। ये हमको रिजल्ट मालूम है लाप्लास का। अभी यहाँ पर भी f of t की वैल्यू जो है वो 3 फॉर्म में दी है आपको, तो इसको भी हमको क्या करना पड़ेगा, अलग अलग फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो देखिए लिमिट यहाँ पे अगेन है 0 टू इन्फिनिटी, और हमें क्या जाना है 0 टू 1 से जाना है, 1 से 2 जाना है। तो 0 के बाद कहीं पर 1 आएगा, 1 के बाद कहीं पर 2 आएगा। तो सपोज ये 1 है ये 2 है, तो 0 टू इन्फिनिटी जाना ऐसे अगर जाएंगे हम, या 0 टू 1, 1 टू 2 और 2 टू इन्फिनिटी जाएंगे, तो टोटल डिस्टेंस क्या है, सेम ही है। मतलब हमारा एम तो वही है, तो 0 टू इन्फिनिटी जाने का। तो एक तो आप डायरेक्ट 0 से इन्फिनिटी जाओ, या आप 0 टू 1 जाओ, 1 टू 2 जाओ और 2 टू इन्फिनिटी जाओ, क्योंकि यहाँ पे क्या है, इसको बोलते हैं हम डिसकंटिन्यूस। जैसे कि लाप्लास में देखा था हमने, इट इज अ जंप डिसकंटिन्यूस फंक्शन। तो 1 के लिए क्या है, वो डिसकंटिन्यूस है, तो यहाँ पे एक जंप मिल जाएगी आपको, इसीलिए इसको यहाँ से यहाँ तक ये कंटिन्यूस है, फिर यहाँ पे डिसकंटिन्यूस है, फिर यहाँ से यहाँ तक ये कंटिन्यूस है, फिर यहाँ पे डिसकंटिन्यूस है, फिर यहाँ से यहाँ पे कंटिन्यूस है। तो इसीलिए हम इसको क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए अगेन पिछले प्रॉब्लम जैसा जो हमने किया था, वहाँ पे 2 वैल्यूज थी, तो 2 इंटीग्रल में किया था। यहाँ पे 3 वैल्यूज है, तो हम इसको 3 इंटीग्रल में करेंगे। सो लाप्लास ऑफ यहाँ पे मिल जाएगा आपको एफ ऑफ टी इज इक्वल टू, पहली वैल्यू जो है 0 टू 1 है, तो पहला इंटीग्रल आएगा हमारा 0 टू 1 e टू द पावर माइनस एस टी। अभी यहाँ पे मैं डायरेक्ट वैल्यू भी पुट करता हूँ। तो जो 0 टू 1 है उसके लिए वैल्यूज कौन सी है हमारे पास, अगर इंटरवल 0 टू 1 है तो उसके लिए वैल्यूज है 1। तो किसकी वैल्यू है, एफ ऑफ टी की। तो एफ ऑफ टी की वैल्यू क्या करेंगे हम, यहाँ पे 1 पुट कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने 1 पुट कर दिया, 1 dt प्लस सेकंड वैल्यू क्या है, अभी 0 टू 1 है, उसके बाद क्या है 1 टू 2 है, तो यहाँ से 1 टू 2 जाएंगे हम, e टू द पावर माइनस एस टी। अभी 1 टू 2 के लिए जो एफ ऑफ टी की वैल्यू है वो कितनी है, टी है, तो यहाँ पे हमारा टी आएगा, टी डी टी प्लस अभी बची हुई जो वैल्यू है वो 2 टू इन्फिनिटी है, तो यहाँ से जाएंगे हम 2 से इन्फिनिटी तक, e टू द पावर माइनस एस टी। और लास्ट जो वैल्यू है वो है टी स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या आएगा, टी स्क्वायर डी टी। तो हमने क्या किया, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। पहले वैल्यू पहले टर्म में 0 टू 1, और अगर आपको चेक करना है तो देखिए ये 1 और ये 1 सेम है, ये 2 और ये 2 सेम है, तो 1 1 कैंसिल, 2 2 कैंसिल, तो रिमेनिंग टर्म इज 0 टू इन्फिनिटी, तो 0 टू इन्फिनिटी। और हम तभी वो वैल्यू वहीं पे पुट करेंगे जो उस रेंज की है। 0 टू 1 के लिए 1 है तो इसमें 1 पुट कर दिया, 1 टू 2 के लिए t है तो इसमें t पुट कर दिया, और 2 टू इन्फिनिटी के लिए t स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या किया हमने, t स्क्वायर। अभी इसको इवेलुएट करेंगे हम, सो विच इज इक्वल टू, पहली वैल्यू होगी हमारी 0 टू 1 e टू द पावर माइनस एस टी इंटू 1 कितना मिलेगा हमको, e टू द पावर माइनस एस टी डी टी। दूसरी वैल्यू 1 टू 2, यहाँ पे 2 टर्म का प्रोडक्ट है, 2 टर्म का प्रोडक्ट है तो हमको क्या करना है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज करना है, पिछले प्रॉब्लम में देखा था हमने। और एक्सपोनेंशियल जो टर्म है वो हमेशा क्या होती है, लास्ट, तो इसीलिए यहाँ पे t को मैं पहले लिखता हूँ और e टू द पावर माइनस एस टी को सेकेंड लिखता हूँ। प्लस थर्ड टर्म में क्या होगा, अगेन यहाँ पर भी 2 टर्म्स का प्रोडक्ट है, तो यहाँ पे टी स्क्वायर को हम पहले लिखेंगे और e टू द पावर माइनस एस टी को हम बाद में लिखेंगे, और यहाँ पे आएगा डी टी। ये हो गया हमारा पूरा सेटअप प्रॉब्लम का। अभी सिर्फ हमको क्या करना है, इस इंटीग्रेशन को इवेलुएट करना है, और इंटीग्रेशन इवेलुएट होने के बाद जो भी हमारा आंसर रहेगा वो हमको मिल जाएगा फाइनल आंसर। तो इसको हम इवेलुएट करेंगे। इवेलुएट कैसे करेंगे, अगर एक टर्म है तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन लेंगे, और 2 टर्म का प्रोडक्ट है तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करेंगे, तो विच इज इक्वल टू, अगेन फार्मूला वही है जो हमने पिछले प्रॉब्लम में यूज किया, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर ax dx अगर होता है तो फार्मूला क्या होगा, इंटीग्रेशन तो वही रहेगा, सिर्फ अपॉन में आएगा x का कोएफिशिएंट जो है a। तो यहाँ पे हम वो फार्मूला यूज करेंगे, तो इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर माइनस एस टी क्या रहेगा, इंटीग्रेशन तो वही रहेगा e टू द पावर माइनस एस टी, लेकिन t का कोएफिशिएंट कितना है, माइनस एस। अभी कोएफिशिएंट में माइनस एस लेना है, माइनस टी लेना है, ये किससे आप ध्यान में आएंगे आपको कैसे करना है। हियर द वेरिएबल इज टी, तो t इज अ वेरिएबल, तो हमको t का कोएफिशिएंट लेना है, तो t का कोएफिशिएंट कितना है, माइनस एस। इसकी लिमिट डाल दो, इसकी लिमिट है हमारे पास 0 टू 1, ये हो गया। प्लस सेकंड के लिए हमको क्या करना है, हमको सेकंड के लिए करना है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स।
और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स ये जो टर्म है ना, ये हमने पिछले प्रॉब्लम में भी सॉल्व की, इसको कैसे सॉल्व करना है वैसे यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे। तो पहली टर्म है टी एज इट इज, दूसरे टर्म का इंटीग्रेशन, सो e टू द पावर माइनस एस टी अपॉन माइनस एस, फिर आएगा माइनस टी का डेरिवेटिव कितना आएगा 1, और इसका इंटीग्रेशन अगेन क्या आएगा e टू द पावर माइनस एस टी अपॉन माइनस एस इंटू माइनस एस, मतलब ये हो गया एस स्क्वायर। इसके बाद आएगा प्लस, लेकिन 1 का डेरिवेटिव कितना बनेगा 0 बनेगा, और 0 इंटू एनीथिंग इज 0, मतलब प्लस 0 करेंगे तो कोई चेंज नहीं, और जब भी टर्म 0 हो जाएंगी तो उसके बाद के सभी टर्म क्या रहेंगे हमारे 0 रहेंगे, इसलिए वहां पे उसको एंड करना है। तो ये हो गया हमारा सेकंड का आंसर। सेकंड की लिमिट क्या है 1 to 2 है, तो इसको दे देंगे हम 1 to 2। थर्ड प्लस इंटीग्रेशन ऑफ, थर्ड के लिए फर्स्ट टर्म कौन सी है टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर एज इट इज। सेकंड है e टू द पावर माइनस एस टी, इसका इंटीग्रेशन आएगा e टू द पावर माइनस एस टी अपॉन माइनस एस, बाद में माइनस पहले का डेरिवेटिव ये आ गया ट्वाइस टी, इसका इंटीग्रेशन क्या रहेगा e टू द पावर माइनस एस टी अपॉन माइनस एस इंटू माइनस एस इज एस स्क्वायर, ऊपर के शेप में भी दिखा था हमने। अभी माइनस के बाद प्लस, अभी यहाँ पे टर्म आएगी, क्यों आएगी क्योंकि देखिए यहाँ पे जो टर्म थी यहाँ पे 1 था, तो 1 का डेरिवेटिव मतलब कांस्टेंट टर्म थी, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है ये हमको मालूम है, लेकिन यहाँ पर वेरिएबल है और इसका डेरिवेटिव निकलेगा, इसका डेरिवेटिव निकलेगा, इसलिए इसके बाद टर्म आएगी। तो इसके बाद टॉइस टी का डेरिवेटिव कितना हो गया 2 हो गया, और इसका इंटीग्रेशन रहेगा e टू द पावर माइनस एस टी, यहाँ से माइनस एस मिलेगा और ये एस क्यूब ऑलरेडी है, तो ये हो गया माइनस एस क्यूब। अभी इसके बाद 2 का डेरिवेटिव लेंगे तो वो क्या आएगा 0, तो इसके बाद की टर्म क्या हो गई 0 हो जाएगी, और इसकी लिमिट्स है 2 to infinity, 2 to infinity। अभी हमारे पास 3 अलग अलग टर्म है, 3 अलग अलग ब्रैकेट है, और 3 अलग अलग ब्रैकेट के लिए अलग अलग लिमिट्स है, तो वहां पे लिमिट्स पुट करके हमको देखना है कि लिमिट पुट करने के बाद आपको क्या मिलेगा। तो यहाँ पे हम लिमिट पुट करेंगे अभी, सो विच इज इक्वल टू, पहले टर्म में लिमिट जो है वो टी की है, इसलिए टी छोड़कर जो भी वैल्यू रहेंगी वो क्या रहेंगी कांस्टेंट, मतलब आप सिर्फ टी की जगह पर भी लिमिट पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो पहली टर्म है इसमें जो माइनस 1 अपॉन एस है इसको मैं बाहर ले लेता हूँ, सो माइनस 1 अपॉन एस एज इट इज। अभी हम लिमिट पुट करेंगे, अपर लिमिट 1 है तो टी इज 1, तो 1 इंटू एस कितना हो जाएगा एस, मतलब माइनस एस, ये हो गया माइनस एस माइनस, लोअर लिमिट कितना है 0, यहाँ पे अगर पुट करेंगे तो e टू द पावर 0, और e टू द पावर 0 कितना होता है 1, तो ये 1 यहाँ पे साइड में लिख दो कहा पर e टू द पावर 0 इज इक्वल टू कितना होता है 1। सेकंड टर्म प्लस, यहाँ पे पहली टर्म हमने सॉल्व कर दी, सेकंड टर्म में क्या करना है हमको पहले अपर लिमिट पुट करना है। अपर लिमिट कौन सा हमारा 2, मतलब जहाँ पर t है वहां पर हम 2 रखेंगे, तो पहले यहाँ पे t है तो यहाँ पे 2 आ गया, नीचे माइनस एस है तो माइनस एस एज इट इज, यहाँ पर एस टी है तो यहाँ पर माइनस 2s आ जाएगा, बाद में अगेन यहाँ पे माइनस है 1 अपॉन एस स्क्वायर एज इट इज, ए टू द पावर माइनस एस टी मतलब माइनस 2s, तो ये हो गई इसके अपर लिमिट। माइनस लोअर लिमिट भी लिखना है, तो लोअर लिमिट कितनी है 1, तो जहाँ पर t है वहां पर 1 रखेंगे, तो ये 1 हो गया, तो 1 इंटू एनीथिंग करेंगे तो कुछ भी ए ही टर्म रहेगी, तो 1 को छोड़ देंगे हम, तो ये आएगा e टू द पावर माइनस 1 इंटू एस एस अपॉन एस। देखिए माइनस लोअर लिमिट करना है, ये टर्म में हमको t इक्वल टू अभी 1 रखना है, तो t इक्वल टू 1 रख दिया तो ये निकल गई, यहाँ पे 1 रखा माइनस एस हो गए 1 इंटू माइनस एस, और यहाँ पर माइनस एस है तो यहाँ पर भी क्या रहेगा ये माइनस रहेगा, बाद में माइनस e टू द पावर माइनस एस टी, तो ये भी e टू द पावर माइनस एस ही होगा क्योंकि t तो 1 है अपॉन एस स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर, तो ये हो गई हमारी सेकंड टर्म। प्लस थर्ड टर्म के लिए देखेंगे अभी, तो थर्ड टर्म के लिए अपर लिमिट है इन्फिनिटी, और हमें मालूम है कि e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी कितना रहता है हमेशा 0 रहेगा, बराबर। तो अगर देखिए अगर पहली टर्म देखते हैं तो यहाँ पर e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी आएगा, सेकंड टर्म अगर देखते हैं तो यहाँ पर भी e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी आएगा, और थर्ड टर्म अगर देखेंगे तो यहाँ पर भी e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी आएगा ही। तो अगर तीनों टर्म में e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी अगर आता है तो तीनों टर्म में 0 आएगा, तो 0 इंटू एनीथिंग इज 0, 0 इंटू एनीथिंग इज 0, 0 इंटू दिस इज 0, मतलब जहाँ पे अपर लिमिट क्या आएगी यहाँ पे हमारी 0 आएगी। तो आप लिमिट पुट करके भी देख सकते हैं, या मैं यहाँ पे मैंने डायरेक्ट लिख दिया तो मैं डायरेक्ट भी ये तीनों वैल्यू 0 रख सकता हूँ।
लेकिन ये कहाँ पे होगा सिर्फ अपर लिमिट के लिए, लोअर लिमिट तो बाकी है। तो अपर लिमिट के लिए तीनों वैल्यूज के आगे 0 माइनस, अभी लोअर लिमिट देखेंगे हम, तो लोअर लिमिट है 2, तो टी स्क्वायर की जगह पे क्या रखना है हमको, 2 रखना है। तो पहली वैल्यू है टी स्क्वायर, तो ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो गया 4 अपॉन माइनस एस e टू द पावर माइनस 2s। टी की जगह पे हमने 2 रखा सिर्फ, तो 2 का स्क्वायर 4, ये टर्म एज इट इज, और ये 2 इंटू एस दैट इज 2s। यहाँ पर माइनस टी की जगह पे 2, तो 2 इंटू 2 4 अपॉन एस स्क्वायर अगेन e टू द पावर माइनस 2s प्लस माइनस माइनस 2 अपॉन एस क्यूब e टू द पावर माइनस 2s, और यहाँ पे ब्रैकेट कंप्लीट। तो ये हमने सभी लिमिट्स यहाँ पे पुट कर दी। अभी हमको क्या करना है, हमने लिमिट को इवेल्युएट कर दिए, सिर्फ हमको टर्म को अभी एडजस्ट करना है। तो एडजस्ट करके देखेंगे कि हमको क्या क्या मिलेगा। तो इसको सॉल्व कर लो अभी। तो पहली जो टर्म रहेगी वो रहेगी माइनस, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो e टू द पावर माइनस एस अपॉन एस, e टू द पावर माइनस एस अपॉन एस। बाद में सेकेंड टर्म माइनस माइनस प्लस, ये हो गया 1 अपॉन एस, ठीक है। थर्ड टर्म प्लस माइनस माइनस 2 बाय एस e टू द पावर माइनस 2s प्लस माइनस माइनस 1 अपॉन एस स्क्वायर e टू द पावर माइनस 2s माइनस माइनस प्लस e टू द पावर माइनस s अपॉन s, ये माइनस और माइनस प्लस हो गया, तो ये टर्म बचेगी सिर्फ माइनस माइनस प्लस e टू द पावर माइनस s अपॉन s स्क्वायर। फिर ये 0 हो गया, तो प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस प्लस, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये मिलेगा आपको प्लस 4 बाय s e टू द पावर माइनस 2s। फिर अगेन माइनस माइनस हो गया प्लस 4 बाय एस स्क्वायर e टू द पावर माइनस 2s, और अगेन माइनस इंटू माइनस इज प्लस, सो 2 बाय एस क्यूब e टू द पावर माइनस 2s। तो ये मिल गई हमको सभी टर्म। अभी इस टर्म को क्या करना है, हमको एडजस्ट करना है और देखना है कुछ कैंसिल होगा, कुछ डबल होगा या क्या होगा। तो एक एक टर्म हम देखेंगे अभी। तो पहले देखिए टर्म माइनस e टू द पावर माइनस एस बाय एस है, और ये जो टर्म देखेंगे आप, ये e टू द पावर माइनस एस बाय एस है। तो दोनों टर्म सेम है, एक निगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, बराबर है। 1 अपॉन एस की जो टर्म है वो 1 अपॉन एस की एक ही टर्म है, तो 1 अपॉन एस की एक टर्म आ जाएगी, तो यहाँ पे मैंने 1 अपॉन एस की टर्म लिख ली। बाद में ये माइनस 2 बाय एस है, देखो टर्म को बराबर आपको कलेक्ट करना है। ये जो है, यहाँ पे मैं इंक चेंज कर देता हूँ, थोड़ा समझ में आएगा। ये है माइनस 2 बाय एस e टू द पावर माइनस 2s, और ये है 4 बाय एस e टू द पावर माइनस 2s। तो ये e टू द पावर माइनस 2s e टू द पावर माइनस 2s बराबर ही है, और 1 अपॉन एस भी बराबर है, मतलब लेकिन ये कितना है 4 टाइम्स है और ये कितना है 2 टाइम्स है, तो इसमें से ये माइनस हो जाएगी, तो ये तो e टू द पावर माइनस 2s अपॉन एस e टू द पावर माइनस 2s अपॉन एस, ये तो कॉमन निकल जाएगा, तो 4 में से 2 माइनस, मतलब कितना बचेगा, यहाँ पे 2 बचेगा। तो हमको जो टर्म मिलेगी वो मिलेगी प्लस 2 बाय एस e टू द पावर माइनस 2s, ये हो गया। फिर बाद में एक और देखेंगे हम, इसके बाद के नेक्स्ट टर्म देखिए आप। नेक्स्ट टर्म में क्या है, 1 अपॉन एस स्क्वायर है e टू द पावर माइनस 2s, और यहाँ पर भी 4 अपॉन एस स्क्वायर है e टू द पावर माइनस 2s। तो इस टर्म का और इस टर्म का भी नेचर सेम है, यहाँ पे e टू द पावर माइनस 2s और यहाँ पे एस स्क्वायर, दोनों क्या है सेम है, तो इसलिए ये 4 टाइम्स है और ये 1 टाइम्स है, और ये प्लस है और ये माइनस है, तो इसमें से अगर ये निगेटिव हो गया तो 4 में से एक गया तो कितना बचेगा हमारे पास, 3 बचेगा। तो यहाँ पर आएगा हमारे पास 3 अपॉन एस स्क्वायर e टू द पावर माइनस 2s, ठीक है। अब रिमेनिंग टर्म देखो आप, रिमेनिंग टर्म में ये टर्म बची है, तो ये और ये दोनों तो अलग अलग टर्म है, तो ये टर्म हम लिख लेंगे प्लस e टू द पावर माइनस एस अपॉन एस स्क्वायर, और लास्ट में प्लस 2 अपॉन एस क्यूब e टू द पावर
माइनस 2s। तो ये हो गया हमारा आंसर। ये आंसर होने के बाद इसमें कुछ आप एडजस्टमेंट भी कर सकते हैं अगर आपको लगता है, या अगर आपको कुछ करना नहीं है तो आप उसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं। तो ये हमारा किसका आंसर हो गया, ये हो गया हमारा लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी। और एफ ऑफ टी कौन सा था आपका, एफ ऑफ टी की वैल्यू तो डिस्टिंक्ट फॉर्म में थी, इसलिए हमको उसके लिखेंगे नहीं, तो हम यहाँ पे सिर्फ डायरेक्ट लिख देंगे लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इक्वल टू, या इसको हम एफ ऑफ एस भी बोल सकते हैं, विच इज इक्वल टू एफ ऑफ एस। तो ये हो गया इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। तो जनरली अगर डिसकंटिन्यूअस टाइप का फंक्शन है, मतलब अगर एफ ऑफ टी की एक वैल्यू, दो वैल्यू, तीन वैल्यू, इस टाइप का प्रॉब्लम अगर आपको मिलता है तो आपको सिर्फ क्या करना है, डेफिनेशन पे जाना है। लाप्लास की जो डेफिनेशन हमने लिखी थी और उस डेफिनेशन की जो लिमिट है उसको हमको डिस्ट्रीब्यूट करना है और ओरिजिनल इंटीग्रेशन सॉल्व करना है। और अगर आपका इंटीग्रेशन तो अभी इसके लिए अच्छा चाहिए, क्योंकि फर्स्ट ईयर में जब आपने पढ़ा, 12th में, 11 में और फर्स्ट ईयर में आपको सिंगल इंटीग्रेशन आता है सॉल्व करना, डबल आता है, ट्रिपल भी आता है। तो ये सिंगल इंटीग्रेशन तो आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तो इस टाइप से हम ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये प्रॉब्लम हो गई हमारे बाय यूजिंग अ डेफिनेशन। तो कुछ और एग्जांपल लेंगे हम। तो कुछ और एग्जांपल जो है वो है बाय यूजिंग अ रिजल्ट। रिजल्ट कौन से है, जो हमने लास्ट लेक्चर में देखे थे, जो 7-8 रिजल्ट मैंने आपको बताए थे कि उस रिजल्ट का यूज करके भी हम प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये जो प्रॉब्लम है वो उस रिजल्ट का यूज करके सॉल्व करना है। तो ये भी देखेंगे हम कि इसको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो सपोज दिस इज एग्जांपल नंबर 1, 2, 3 एंड 4। तो फर्स्ट आंसर, तो देखिए यहाँ पर जो फंक्शन है ना वो एक ही वैल्यू है, तो एक वैल्यू है तो वहां पे अब आप रिजल्ट यूज कर सकते हैं। इसके बाद हम आगे जाएंगे तो रिजल्ट के साथ प्रॉपर्टी भी आएंगे कुछ, तो प्रॉपर्टी का और रिजल्ट का कॉम्बिनेशन करके भी आप सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर डिसकंटिन्यूअस टाइप का फंक्शन है जैसे हमने पहले देखा था, तो उसके लिए क्या करना है, हमको डेफिनेशन यूज करना है। तो ये प्रॉब्लम्स ट्राई करेंगे हम। तो यहाँ पे जो पहला एग्जाम्पल है वो है हमारा कॉस स्क्वायर टी। तो हमारा पहला एग्जाम्पल जो है वो है एफ ऑफ टी इक्वल टू कॉस स्क्वायर टी। बाय डेफिनेशन भी आप रिजल्ट ये सॉल्व कर सकते हैं, ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन रिजल्ट यूज करके ये प्रॉब्लम का आंसर क्या आएगा, जल्दी मिलेगा आपको। तो आपके पास जो रिजल्ट है, आपको वो रिजल्ट देखना है जिसमें कॉस है। तो कॉस के लिए हमारे पास एक रिजल्ट है लाप्लास ऑफ कॉस 80। ये रिजल्ट है हमारे पास s अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इस टाइप का रिजल्ट है। या टिग्नोमेट्रिक कॉस की टर्म कभी साइन भी हो सकती है, या देखेंगे फिर बाद में साइन हुआ तो। लेकिन यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो ये जो कॉस है, ये कॉस लीनियर टर्म है, मतलब इसका पावर 1 है, और ये जो कॉस है यहाँ पे क्वाड्रेटिक टर्म है। तो फार्मूला तो हम तभी लगाएंगे जब ये लीनियर टर्म में होगी, लेकिन यहाँ पे क्या है, क्वाड्रेटिक है। तो क्वाड्रेटिक को आपको पहले लीनियर टर्म में कन्वर्ट करना होगा। अभी कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो हमारे पास एक फार्मूला है cos स्क्वायर थीटा। व्हाट इज द फार्मूला फॉर cos स्क्वायर थीटा, 1 प्लस cos 2 थीटा बाय 2। देखिए यहाँ पे क्वाड्रेटिक थी तो ये लीनियर में कन्वर्ट हो गई। तो ये फार्मूला क्या करना है, हमको यहाँ पे यूज करना है। तो पहले हम ये फार्मूला यूज करेंगे। तो थीटा है तो यहाँ पे टी है, तो cos स्क्वायर टी क्या हो जाएगी अभी, 1 प्लस cos 2t अपॉन 2 हो गई। इसके बाद हम अभी इसको सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करना है। तो हमको लाप्लास निकालना है, फार्मूला तो अभी हमको मालूम है कैसे करना है, कैसे यूज करना है, तो हम इसका डायरेक्ट लाप्लास लेंगे। सो देयरफॉर लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू लाप्लास ऑफ 1 प्लस cos 2t बाय 2। तो यहाँ से 1/2 जो है ना, इसको हम कॉमन ले सकते, मतलब बाहर ले लिया, और लाप्लास को अंदर ऑपरेट कर दो। तो ये जो पहली टर्म है इस पे ऑपरेट हो जाएगा लाप्लास, तो लाप्लास ऑफ 1 बचेगा, और सेकंड टर्म पे ऑपरेट होगा तो लाप्लास ऑफ बचेगा cos 2t। अभी ये कहाँ से आया, तो वो प्रॉपर्टी हम बाद में लिखेंगे थोड़े, तो एक बार आप सिर्फ ध्यान में रखें प्रॉपर्टी कैसी है। अगर आपके पास दो फंक्शन है और मुझे इसका लाप्लास निकालना है, ये f1 ऑफ टी
प्लस बी एफ टू ऑफ टी। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ए इंटू, एक बाहर निकल गया तो लाप्लास ऑफ एफ वन ऑफ टी, और यहाँ पे बी कांस्टेंट तो इसको भी बाहर ले लिया मैंने, और ये आएगा लाप्लास ऑफ एफ टू ऑफ टी। तो इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं हम लीनियर प्रॉपर्टी, और ये प्रॉपर्टी में हम थोड़े डिटेल्स में लेंगे। तो आप अभी सिर्फ ध्यान में रखो कि इस प्रॉपर्टी में क्या, जैसे इंटीग्रेशन करते हैं, इंटीग्रेशन अगर लेना है तो हम क्या करते हैं, कांस्टेंट बाहर लिखते, और दो टर्म के एडिशन का इंटीग्रेशन है तो फॉर इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड टर्म। डेरिवेटिव भी लेते तो क्या करते हम कांस्टेंट को बाहर लेते, और डेरिवेटिव लेना है दो टर्म के एडिशन का तो डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस डेरिवेटिव ऑफ सेकंड टर्म। वैसे ही यहाँ पे करना है, कांस्टेंट क्या था यहाँ पे 2 था तो 1/2 को मैंने बाहर ले लिया, और यहाँ पे दो टर्म की एडिशन है और लाप्लास उस पर ऑपरेट करना है। तो ऑपरेट करने के लिए क्या होगा, लाप्लास ईच एंड एवरी टर्म पे ऑपरेट होगा। तो यहाँ पे होगा लाप्लास ऑफ 1 पहली टर्म और दूसरी होगी लाप्लास ऑफ cos 2t। अभी इसके लिए हमको लगेगा रिजल्ट, एक रिजल्ट मैंने पहले लिखा था, एक रिजल्ट और लिखना है यहाँ पर, और यहाँ पे मैं दोनों रिजल्ट अभी लिख लेता हूँ। तो हमने जो रिजल्ट प्रूव किए थे, हमारा एक पहले ही रिजल्ट था कि लाप्लास ऑफ 1 अगर है तो उसका आंसर कितना है 1/s, और लाप्लास ऑफ अगर cos 80 है तो इसका रिजल्ट क्या है s/s² प्लस a²। ये दो रिजल्ट हमारे पास है, तो इस रिजल्ट का यूज करके इसको सॉल्व करेंगे हम। सो विच इज इक्वल टू, ये हो गया 1/2 एज इट इज। सो लाप्लास ऑफ 1 कितना है 1/s, रख दो बाहर, प्लस cos 80 ऊपर आता s तो s आया, नीचे आएगा s² प्लस a²। a मतलब t का कोएफिशिएंट, t का कोएफिशिएंट कितना है यहाँ पे 2, तो यहाँ पे मिलेगा हमको 2 का स्क्वायर। तो हमको आंसर मिलेगा 1/2 1/s प्लस s/s² प्लस 2 का स्क्वायर इक्वल टू 4। ठीक है, लगता तो इसको हम आगे सॉल्व भी कर सकते हैं। तो इसको अगर हमको सॉल्व करना है तो 1/2 एज इट इज है, सॉल्व कैसे करेंगे, बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो 1 इंटू s² प्लस 4, ये हो गया s² प्लस 4 प्लस s इंटू एस इज s² अपॉन नीचे आएगा s इंटू s² प्लस 4 ब्रैकेट कंप्लीट, विच इज इक्वल टू, आगे सॉल्व करो। ठीक है, आगे अगर सॉल्व करेंगे तो इसको सिर्फ कंबाइन करना है हमको। तो ये हो गया 1/2, यहाँ से s² प्लस a² हो जाएगा 2a² प्लस 4 अपॉन s इंटू s² प्लस 4। अभी यहाँ पे देखेंगे ना पहले टर्म में, तो यहाँ पे 2 और यहाँ से 2 हम कॉमन निकाल सकते हैं। तो यहाँ से और यहाँ से 2 कॉमन निकालने के बाद यहाँ पे बचेगा 2 बाहर निकल गया हमारा, तो यहाँ पे बचेगा s² प्लस 2, और ये 2 तो अपॉन में है ऑलरेडी, और यहाँ पे है s इंटू s² प्लस 4, तो 2 कैंसिल। तो हमारा आंसर हो जाएगा s² प्लस 2 अपॉन s² प्लस 4। तो ये हो गया हमारा आंसर। किसका आंसर ये, लाप्लास ऑफ cos स्क्वायर t, और इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं f(s). तो आप यहीं पर भी, यहाँ पर भी एंड कर सकते हैं आप, लेकिन अगर थोड़ा डिटेल सॉल्यूशन चाहिए आपका तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम सिर्फ आपको पूछा है कि फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ cos स्क्वायर t, तो यहाँ तक भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे। लेकिन अगर आपको ऐसा प्रॉब्लम आ गया, प्रूव दैट, अगर आपको ऐसा प्रॉब्लम आएगा कि ये प्रूव करना है आपको, प्रूव दैट लाप्लास ऑफ cos स्क्वायर t इज इक्वल टू दिस, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको, आगे भी सॉल्व करना होगा। तो ये हो गया इसका कंप्लीट सॉल्यूशन। और कैसे निकाला हमने, बाय यूजिंग रिजल्ट। कौन से रिजल्ट, जो हमने कल यूज किए थे उसका यूज करके वो हमने सॉल्व किया। उसके बाद सेकंड प्रॉब्लम देखेंगे क्या है। तो सेकंड प्रॉब्लम है हमारा, फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ t रेज़ टू द पावर -1/2, t रेज़ टू द पावर -1/2 सेकंड। तो यहाँ पे जो f ऑफ t है वो है t रेज़ टू द पावर -1/2। डायरेक्ट लाप्लास लेंगे हम। सो लाप्लास ऑफ f ऑफ t इक्वल टू लाप्लास ऑफ t रेज़ टू द पावर -1/2, वैल्यू पुट कर दी। अभी जो रिजल्ट है हमारे पास, एक रिजल्ट है, शायद आपका सेकंड या थर्ड रिजल्ट होगा वो, ये हमने देखा था कल, लाप्लास ऑफ t रेज़ टू द पावर है, इसकी वैल्यू कौन सी थी, n फैक्टोरियल अपॉन s रेज़ टू द पावर n+1, बराबर। तो ये फार्मूला सिर्फ हमको याद करना है। तो क्या है यहाँ पे,
टी रेस टू द पावर एन, जो पावर होगा टी का वो एन होगा, तो यहाँ पे एन कितना है -1/2, तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे, यहाँ पे आप पुट करेंगे तो आपको मिलेगा n फैक्टोरियल, मतलब -1/2 फैक्टोरियल, -1/2 फैक्टोरियल। अभी यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम आ जाएगा हमारा। प्रॉब्लम कैसे आएगा यहाँ पे अभी यहाँ पे हमारा इशू ये है कि फैक्टोरियल जब निकालते हैं ना हम, फैक्टोरियल हमारे पॉजिटिव नंबर के फैक्टोरियल आते हैं, जैसे कि 1 फैक्टोरियल मुझे निकालना है, तो 1 फैक्टोरियल म्हणजे क्या होगा 1 × 1 दैट इज 1, 2 फैक्टोरियल मतलब 2 × 1 दैट इज 2, 3 फैक्टोरियल मतलब 3 × 2 × 1 दैट इज 6। तो इस टाइप से हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन कोई फंक्शन अगर निगेटिव है तो उसका फैक्टोरियल निकालना बहुत ही डिफिकल्ट है। अब इस प्रॉब्लम सॉल्व तो करना है, तो सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, अगर आपको याद होगा लास्ट लेक्चर हमने एक गामा और बीटा फंक्शन में रिलेशन यूज किया था, मैंने गामा ऑफ n+1 इज इक्वल टू n फैक्टोरियल इस टाइप का, या पिछले साल आपका गामा बीटा फंक्शन जो होगा उसमें भी हमने ये रिजल्ट यूज किया है, गामा ऑफ n+1 इज इक्वल टू n फैक्टोरियल। तो अगर कहीं पर निगेटिव टर्म आती है तो आपको क्या करना है, ये रिजल्ट हमको यूज करना है, ये रिजल्ट हमको यूज करना है कि गामा ऑफ n+1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा n फैक्टोरियल। तो अगर ये फार्मूला हम यहाँ पे यूज करते हैं तो आपको जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा -1/2 फैक्टोरियल अपॉन s रेज़ टू द पावर -1/2 + 1, बराबर है। नीचे की जो टर्म है उसका तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है हमारा फैक्टोरियल का, और निगेटिव टर्म का फैक्टोरियल तो हम फाइंड नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसको हम रिवर्स यूज करेंगे। तो n फैक्टोरियल अगर है तो क्या होगा n+1, मतलब उसमें एक ऐड करेंगे और उसको गामा में देंगे हम, तो ये रिजल्ट अगर हमने यहाँ पे यूज कर दिया तो आपको यहाँ पे टर्म मिलेगी गामा ऑफ -1/2 + 1। देखिए ये n है तो हमारा ये n है, तो गामा ऑफ n+1 मतलब ये आएगा, और s रेज़ टू द पावर मिलेगा हमको -1/2 + 1, कितना होगा, ये हो गया 1/2। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो, 1 - 1/2 मतलब क्या होगा अगेन 1/2, यहाँ पे भी क्या है s रेज़ टू द पावर 1/2, और एक और फार्मूला है, इसका प्रूफ भी था पिछले साल, गामा ऑफ 1/2 की वैल्यू हमेशा क्या होती है √π, तो इसका आंसर है √π, तो यहाँ पे पुट कर देंगे हम, तो यहाँ पे मिला आपको √π, और नीचे की टर्म कौन सी है s रेज़ टू द पावर 1/2, s रेज़ टू द पावर 1/2 को आप √s भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा लाप्लास ऑफ f ऑफ t मतलब f ऑफ s। ये हो गया सेकेंड प्रॉब्लम का आंसर, बहुत ही ईजी आप प्रॉब्लम है। सिर्फ यहाँ पे एक आपको कंसेप्ट मालूम चाहिए कि निगेटिव टर्म का फैक्टोरियल नहीं निकलेगा, तो निगेटिव टर्म का फैक्टोरियल निकालने के लिए हमको एक गामा और बीटा में रिलेशन चाहिए, जो कि ये है गामा ऑफ n+1 इज इक्वल टू n फैक्टोरियल, और गामा ऑफ 1/2 की वैल्यू क्या होती है √π। तो ये अगर हम यहाँ पे पुट करेंगे तो हमको इस प्रॉब्लम का आंसर इजीली मिल जाएगा। तो ये हो गया हमारा सेकंड। थर्ड, एक दो प्रॉब्लम और ले लेंगे हम। थर्ड देखेंगे कौन सा एग्जाम्पल है। So our third example is 4 sin cube t. 4 sin cube t. Third, f of t is equal to 4 sin cube t. ठीक है, अभी यहाँ पर भी हमको पहले तो देखना है कि रिजल्ट कौन सा यूज होगा। तो हमारे पास एक रिजल्ट है लाप्लास ऑफ साइन ए टी। क्या रिजल्ट है वो, ये अपॉन s² + a², इस टाइप का रिजल्ट है। आप देख लेना, आपको रिजल्ट थोड़ा याद करना ही है क्योंकि प्रॉब्लम में हमको डायरेक्ट यूज करना है। लेकिन यहाँ पर देखेंगे आप तो अगेन जैसे कॉस के प्रॉब्लम में था कि इसका पावर 1 चाहिए, मतलब लीनियर चाहिए, लेकिन इसका पावर क्या है लीनियर नहीं है, तो हमको इसको लीनियर में कन्वर्ट करना है। तो लेकिन वहां पे स्क्वायर था तो हमने क्या किया, डबल एंगल का फार्मूला एक यूज किया था, लेकिन यहाँ पे क्यूब है तो हमको क्या करना पड़ेगा, एक ट्रिपल एंगल का फार्मूला यूज करना पड़ेगा। और ट्रिपल एंगल का फार्मूला क्या है वो आपको मालूम होगा अभी,
नहीं है तो मैं बता देता हूँ यहाँ पे आपको ट्रिपल एंगल का फार्मूला क्या है, साइन में होना। तो साइन ट्रिपल एंगल का फार्मूला ऐसा है कि साइन 3 थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ये हमारा ट्रिपल एंगल का फार्मूला है। इसमें से जो वैल्यूज आपको गिवन है ये है 4 साइन क्यूब टी, मतलब ये 4 साइन क्यूब टी, तो इसकी वैल्यू निकालेंगे हम। तो इसको अगर मैं इधर शिफ्ट करता हूँ तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो 4 साइन क्यूब थीटा इज इक्वल टू ये एज इट इज 3 साइन थीटा, और ये इधर जाने के बाद ये इधर आएगी और ये हो गया माइनस साइन 3 थीटा। तो आपको ये फार्मूला यूज करना है। ये फार्मूला देखिए क्यूब में है, यहाँ पे इसका पावर 1 है और यहाँ पे इसका भी पावर 1 है। तो ये फार्मूला यूज करने के बाद आपको इस प्रॉब्लम का आंसर इजी मिल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड से लाप्लास ले लेंगे फिर। सो लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू लाप्लास ऑफ 4 साइन क्यूब टी। ये आपको साइड में लिखना है, अगर साइड में नहीं लिखना है तो प्रॉब्लम में लिख दो और बाद में सॉल्व करो, या साइड में लिखेंगे तो हम यहाँ से फिर डायरेक्ट अभी यहाँ पे यूज करेंगे। सो विच इज इक्वल टू एल लाप्लास ऑफ 4 साइन क्यूब टी, थीटा की जगह पे सिर्फ टी लिखना है, तो ये क्या आएगा 3 साइन टी माइनस साइन 3 टी। ठीक है, इसके बाद जो पिछला प्रॉब्लम लिया था वैसे ही हमने जो लीनियर प्रॉपर्टी मैंने यूज की थी, कांस्टेंट बाहर लेकर लाप्लास हर एक टर्म को ऑपरेट करना है, वैसे ही करना है। तो पहली टर्म देखेंगे हम, तो पहली टर्म ये है, तो पहले तो लाप्लास हम सेपरेट कर देंगे। ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, तो हम इसको लिखेंगे लाप्लास ऑफ फर्स्ट टर्म माइनस लाप्लास ऑफ सेकंड टर्म साइन 3 टी। अभी यहाँ पे पहले टर्म में जो है 3 कांस्टेंट है तो इसको बाहर ले लिया। सो लाप्लास ऑफ साइन टी माइनस लाप्लास ऑफ साइन 3 टी। जो रिजल्ट मैंने पहले भी इसके आगे भी लिखा है, यहाँ पे और एक बार लिख देता हूँ कि लाप्लास ऑफ साइन 80 कितना होता, a अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये रिजल्ट हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो यहाँ पे 3 इंटू, यहाँ पे a मतलब t का कोएफिशिएंट कितना है 1 है, तो यहाँ पे आएगा 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर मतलब 1 माइनस यहाँ पे कितना है t का कोएफिशिएंट यहाँ पे 3 है, तो a अपॉन मतलब 3 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर कितना होगा 9। ये हो गया। अभी इसको आगे भी सॉल्व कर सकते हैं आप, तो ट्राई करो आगे सॉल्व करने का क्या आंसर मिलेगा। तो दोनों टर्म में देखेंगे हम, तो 3 तो कॉमन है, तो 3 को बाहर ले लिया मैंने, तो यहाँ पे टर्म बची 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 9। अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 एज इट इज, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू एस स्क्वायर प्लस 9 हो गया एस स्क्वायर प्लस 9, फिर ये माइनस 1 इंटू माइनस एस स्क्वायर, तो ये हो गया माइनस एस स्क्वायर, माइनस 1 इंटू प्लस 1 ये हो गया माइनस 1 अपॉन दोनों का मल्टीप्लीकेशन एस स्क्वायर प्लस 1 इंटू एस स्क्वायर प्लस 9। देखो क्या मिलता है, एस स्क्वायर पॉजिटिव निगेटिव कैंसिल, 9 माइनस 1 कितना हो जाएगा 8, और 8 इंटू 3 24, तो ये आ गया 24 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 एस स्क्वायर प्लस 9। तो हमें क्या मिला, लाप्लास ऑफ 4 साइन क्यूब टी इज इक्वल टू 24 अपॉन दिस, और इसको भी हम लिख सकते हैं विच इज इक्वल टू एफ ऑफ एस। ठीक है, अभी आपको ये भी पूछ सकते हैं कि व्हाट इज द लाप्लास ऑफ साइन क्यूब टी, व्हाट इज द लाप्लास ऑफ साइन क्यूब टी कितना होगा। तो इसमें सिर्फ क्या करेंगे हम, ये जो 4 है ये 4 नीचे आ जाएगा, मतलब 4 नीचे आ जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा 6 इंटू 4 दैट इज 24, तो 6 अपॉन ये आएगा। तो ये भी प्रॉब्लम आ सकता है आपको, सिर्फ 4 को इधर शिफ्ट करना है। तो ये हो गया हमारा थर्ड एग्जाम्पल, और ये जो लास्ट एग्जाम्पल है वो भी हम ट्राई करेंगे सॉल्व करने का, मतलब इसमें से आपको फिर वो रिजल्ट और जो डायरेक्ट फार्मूला है उसमें से कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करना है वो पूरा क्लियर हो जाएगा। सो लास्ट फार्मूला इज find the Laplace transformation of, last problem is find the Laplace transformation of 2 sin 2t into cos 4t. So number 4, f of t is equal to 2 sin 2t into cos 4t। अभी यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे
साइन का फार्मूला हमारे पास है, कॉस का फार्मूला हमारे पास है, लेकिन यहाँ पे दोनों का कॉम्बिनेशन है और दोनों के कॉम्बिनेशन के लिए हमारे पास कोई रिजल्ट नहीं है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसको अलग अलग करना पड़ेगा। और अलग अलग कैसे करना है, ये तो बहुत बार हमने किया है, साइन और कॉस, कॉस और साइन, कॉस और कॉस, और साइन और साइन को सेपरेट सेपरेट कैसे करना है। तो इसके लिए तो फार्मूला ही है। तो आपको अगर एक फार्मूला मालूम होगा तो ये हमारा एक फार्मूला है, 2 sin a इंटू कॉस बी। इसका रिजल्ट क्या होता, साइन a प्लस बी बाय 2 प्लस साइन a माइनस बी बाय 2। ये हमारे पास फार्मूला है, साइन a प्लस बी बाय 2 प्लस साइन a माइनस बाय 2 टू साइन a इंटू कॉस बी अगर है तो यहाँ पे अगर a देखेंगे आप, साइन का जो एंगल है वो ये है और कॉस का एंगल जो है वो b है। तो a की वैल्यू हो गई ट्वाइस t और b की वैल्यू हो गई 4t। तो हम पहले क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे और जब भी हमारा रिक्वायर्ड फॉर्म मिल जाएगा आपको, जैसे कि साइन के लीनियर टर्म मिल जाएंगे यहाँ पर, और साइन के लिए आपके पास रिजल्ट मालूम है तो वो रिजल्ट बाद में हम यूज कर सकते हैं। तो पहले इसको हम सॉल्व कर देंगे। तो फार्मूला जो है साइन a प्लस बी, ए प्लस बी अपॉन कितना 2 प्लस साइन a माइनस बी अपॉन 2 विच इज इक्वल टू साइन। पहले जब देखिए आप, 2 और 4 हो गया 6, 6t बाय 2 मतलब ये हो गया 3t प्लस साइन 2t माइनस 4t हो गया माइनस 2t, और माइनस 2t बाय 2 मतलब ये हो गया माइनस t। और हमारे पास एक और रिजल्ट है, साइन ऑफ माइनस थीटा अगर है तो ये होता माइनस साइन थीटा। ये अगर हम यूज करेंगे तो ये साइन 3t और ये माइनस बाहर आ जाएगा तो ये प्लस माइनस माइनस साइन t। अभी आप ऑब्जर्व करो, ये जो टर्म है साइन की ये लीनियर है और दो का कॉम्बिनेशन है, मतलब दो सेपरेट सेपरेट टर्म है। तो यहाँ पे हमारे पास फार्मूला है, कौन सा फार्मूला है लाप्लास का, लाप्लास ऑफ साइन ए टी। क्या रिजल्ट है, ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये रिजल्ट हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो हम सिर्फ दोनों साइड से क्या करेंगे भी, लाप्लास ऑपरेट करेंगे। सो लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू लाप्लास ऑफ साइन 3t माइनस साइन टी। दोनों का कॉम्बिनेशन है, लाप्लास ऑपरेट करेंगे, इसको सेपरेट कर देंगे। तो ये हो गया साइन 3t, सेकंड हो गया लाप्लास ऑफ साइन टी। अप्लाई कर दो रिजल्ट। ए पहले इसमें ए कितना है 3 है, तो ये आएगा 3 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर मतलब 9 माइनस दूसरे इसमें कितना है ए मतलब 1 है, तो 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो ये तो हमारा सॉल्व हो गया, सिर्फ उसको एडजस्ट करना है, थोड़ा इवैल्यूएशन करके थोड़ा कंप्लीटली उसका आंसर निकाल के देखो कितना मिलता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 3 इंटू एस स्क्वायर 3s स्क्वायर प्लस 1 इंटू 3 प्लस 3 माइनस 1 इंटू एस स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 9 इंटू 1 9 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 9 इंटू एस स्क्वायर प्लस 1। क्या कैंसिल होगा, 3s स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर कितना बचेगा, ये हो गया ट्वाइस एस स्क्वायर, और प्लस 3 माइनस 9 ये हो गया माइनस 6 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 9 एस स्क्वायर प्लस 1। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर, इसको बोलेंगे हम एफ ऑफ एस। और ये किसका आंसर है, लाप्लास ऑफ 2 साइन 2t इंटू कॉस 4t। तो इस टाइप से जो हमने प्रॉब्लम लिए है आज, वो लिए हम बाय यूजिंग अ डायरेक्ट डेफिनेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन और बाय यूजिंग स्टैंडर्ड रिजल्ट। ठीक है, अभी कुछ प्रॉब्लम ऐसे होंगे कि इतना सफिशिएंट नहीं होगा सॉल्व करने के लिए, मतलब हमारे पास जो है डेफिनेशन और हमारे पास जो रिजल्ट है इसका यूज करके ही कुछ प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होंगे। तो उसके लिए क्या आएगा, प्रॉपर्टीज का हमको यूज करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे द प्रॉपर्टीज ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन and we solve the example by using a combination of result, definition and the properties. So thanks for watching.